Namaskar dear student. In previous class I have taught you chapter 3 from the book of First Flight, first part, and today's video I am going to teach you the second part of the third lesson, that is the black aeroplane. According to the title, you can observe it very easily that this story is about a black aeroplane that was mysterious for the character itself in this present story. इस प्रेजेंट लेसन में ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो इस लेसन के जो कैरेक्टर है उसके लिए एक मिस्टीरियस एरोप्लेन कैसे है. आई एम गोइंग टू टेल यू द थीम ऑफ दिस स्टोरी. आई मीन शॉर्ट समरी ऑफ दिस स्टोरी. देयर वाज अ कैरेक्टर, देयर वाज अ पायलट who was flying an aeroplane in the clear sky. At the evening there was a moon that was shining in the sky and even the stars are shining over there. आकाश बहुत साफ हो रहा था, कहीं भी कोई बादल नहीं थे. पायलट अपने प्लेन को हवा में बहुत अच्छे से उड़ा रहे थे. Thereafter when he covered a lots of distance, after covering a lots of distance, he saw a storm cloud that is spread all over the sky. मतलब कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने आकाश में देखा कि एक बवंडर सा, एकदम काले काले बादल जो बवंडर सा दिख रहे थे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था. Beside the cloud, he could not see anything except the black or stormy cloud. अब वो सोचने लगा कि how I can go across the black cloud. तभी वो पता है कि वो अपने आप को क्लाउड के बीच में चला जाता है and he cannot find any path how to land on an airport. तभी अचानक से उसे ये ब्लैक एरोप्लेन नज़र आती है और ये ब्लैक एरोप्लेन उसको उस स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकलने में मदद करता है. एट लास्ट द कैरेक्टर, द पायलट डिड नॉट फाउंड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन कि वो कहाँ से आया, उसको कौन ड्राइव कर रहा था. एकदम मिस्टीरियस था उसके लिए. और ये सारा लेसन आपको पढ़ना है. चलेंगे इसमें लाइन बाय लाइन. उससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट राइटर ऑफ दिस लेसन. Be focused there, please. The present writer of this lesson is who? The present writer is Frederick Fossey. Was born on 25 August 1938 in Ashford, Kent, England. He was educated in Cambridge School and later joined the University of Granada in Spain, and he joined the RAF and became a jet fighter pilot, and he became a journalist and joined the BBC in 1965 where he served as an assistant diplomatic correspondent. After the introduction of the writer, I am going to tell you the story line by line. Be focused, listen to me very carefully. Here you can see and observe on the board what it has been written over here. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. And there wasn't a cloud in the sky and I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. Now, कहा जा रहा है कि when the character of this lesson was flying his aeroplane that is named as Dakota. जो एरोप्लेन वो उड़ा रहे थे उसका नाम था डेकोटा. उनका पुराना एरोप्लेन था. एंड व्हेन ही वाज फ्लाइंग और
when he was flying the aeroplane, the sky was clear. आकाश एकदम साफ सुथरा था. There was no any cloud, but the moon in the sky and even the stars were shining above him. बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जब वो आकाश की ओर देखते थे तो चंद्रमा और उसके साथ साथ बहुत से स्टार्स भी आकाश में चमक रहे थे और आकाश बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और उनका मूड उस समय बहुत ही खुश था. ही वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम बिकॉज ऑफ जब सारे लोग सो रहे थे एंड इन दैट टाइम ही वॉज एवम इन द स्काई. और दैट बता रहे कि डिक्टेटर नामक एरोप्लेन से कहाँ जा रहे थे. फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहे थे. फ्रांस से इंग्लैंड को लौट रहे थे. एंड आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. अब कह रहे हैं कि वो जब फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहे थे तो वो रास्ते में ही स्वप्न देख रहे थे, मतलब अपने आप में सोच रहे थे कि when he went to his home there was an holiday and it was the time to spend with his family. वो अपने फैमिली के साथ उस हॉलीडे को स्पेंड करें और बार बार वो अपने घड़ी की ओर देखते थे और कहते थे इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. मतलब रात के 1:30 बज रहे थे. रात के 1:30 बज रहे थे और 1:30 जब बजाता है तो AM हो जाता है माय डियर. इसलिए इस कैरेक्टर ने उसको मॉर्निंग की समझा. एंड देन आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम. आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. अब कह रहे हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए. उन्होंने ऐसा सोचा. क्यों सोचा? क्योंकि जो एरोप्लेन का आगे का वाला चेहरा था, आगे वाली फेस जो नोज टाइप की होती है उसके बारे में शायद कुछ बात है. आगे कह रहे हैं in the past nose of the airplane I saw the light of a big city in front of me and I switched on the radio and said Paris control Dakota DS088 here, can you hear me? I am on my way to England. over. इन्होंने क्या किया, अपने प्लेन में उपस्थित रेडियो को स्विच ऑन किया and by the help of the radio he try to connect with the Paris control room. और जब वहाँ उनसे बात हुई तो उन्होंने वहाँ जिसने फ़ोन को पिकअप किया होगा, जिसने रेडियो को सुना होगा, उससे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड जाने के लिए. पेरिस से चला हूँ और इंग्लैंड जाने के लिए वो रास्ते में है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तभी रेडियो से मतलब पेरिस के कंट्रोल रूम से उनको आंसर बहुत जल्द मिल गया. एंड देन आफ्टर DS, ये जो DS और 088 ये डोकोटा नाम के प्लेन का नंबर दैट इज rated over here and I can hear you and you want to turn 12 degree west now and DS088 over. अब ये कह रहे हैं फ्रांस से जो आवाज़ आई उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में जाना चाहिए. 12 डिग्री वेस्ट में टर्न कर लेना चाहिए इस प्लेन को DS088 एंड देन ओवर. जब बात फिनिश हो जाती है माय डियर, जब बात फिनिश हो जाती है तब ओवर कह दिया जाता है. अब ओवर कहने का मतलब है कि ये जो पेरिस कंट्रोल रूम है उसका बात खत्म हो गया. अब एरोप्लेन में जो पायलट था उनकी बारी. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and tuned the Dakota 12 degree west toward England. अब इस पायलट ने क्या किया, अपने मैप को चेक किया, अपने कंपास को चेक किया. हर एक एरोप्लेन में एक कंपास लगा हुआ था जो उसको डायरेक्शन बताता है और उस डायरेक्शन उस कंपास के हिसाब से उस राइडर ने क्या किया, उस पायलट ने क्या किया, अपने फ्यूल टैंक को भी चेक किया. इफ देयर इज
इनफ फ्यूल इन द टैंक। और जब फ्यूल को उन्होंने चेक कर लिया तब अपने डकोटा नाम के प्लेन को 12 डिग्री में वेस्ट में घुमा दिया, जो इंग्लैंड की ओर जा रहा था रास्ता। आगे क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ I will be in time for breakfast. I thought a good big England breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब ये जो पायलट है वो कह रहे हैं कि मैं अब इंग्लैंड बहुत टाइम से पहुंच जाऊंगा and there I have a very good breakfast over there with my family. वो ऐसा सोचते हैं तभी एक गुड, ये लिखा हुआ a good big English breakfast he had with his family. Everything was going well. सब उनके साथ अच्छा जा रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो फ्लाइट था बहुत आसानी से इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा था। But Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. अब ये कह रहे हैं कि जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आ गए, मतलब जहाँ वो थे वहाँ से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था पेरिस। अब जब वहाँ 150 किलोमीटर आगे की ओर आ गए हैं तब उन्हें वो स्टॉर्म क्लाउड आकाश में दिखा। Then there were huge, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने स्टॉर्म क्लाउड को देखा जो बहुत ही विशाल एक विशाल माउंटेन के जैसा दिख रहा था जो उनके सामने खड़ा था। अब उस विशाल माउंटेन को देखकर क्या करेंगे? I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or the south. अब ये जो पायलट है वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मैं इस स्टॉर्मी क्लाउड को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकता और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल बचा है कि मैं यहाँ से वापस मुड़ के दूसरे रास्ते से जा सकूँ। वो दूसरा रास्ता कौन सा चुनेंगे? नॉर्थ और साउथ का रास्ता चुनने की कोशिश करेंगे। बट ही हैडंट इनफ फ्यूल टू फ्लाई ओवर अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब वो सोचने लगे कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू। अब वो सोच रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। I will take the risk. I thought and flew over old Dakota straight into the storm. और कुछ देर बाद उन्होंने सोची और फिर बोला कि मैं रिस्क ले लूँगा क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है कि मैं दूसरे रास्ता को पकड़ के और लंबी दूरी तय करके जा सकूँ। इसलिए जब वो स्टॉर्म में फंस गए तब क्या किया उन्होंने? स्टॉर्म को चीरते हुए आगे जाने की विचार कर लिया। उन्होंने सोच लिया एंड देन आफ्टर ही फ्लू द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म में सीधा उन्होंने घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane, and the old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass and I couldn't believe. अब ये कह रहे हैं कि जब क्लाउड के अंदर वो घुस गए, तब घुसते ही उन्हें सडनली बहुत काला सा दृश्य दिखा। अब उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। अब कह रहे हैं इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर दिखना इम्पॉसिबल सी हो गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उस स्टॉर्मी एरिया में जब वो एरोप्लेन घुस गया तो बताया जा रहा है कि द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड द एयर। उस एयर में उस स्टॉर्म में फंसकर और उनका एरोप्लेन इस तरह डगमगाने लगा, हिलने लगा, जैसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा। जब उन्होंने अपने कंपास की ओर देखा तब क्या देखा कि उनको विश्वास नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि आई कुड नॉट बिलीव। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं क्या देखा।
कह रहे हैं आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई आईज, अपनी आंखों पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा क्या देखते थे, कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड, इट वुड नॉट वर्क, द क्लियर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू एंड आई ट्राइड द रेडियो। अब उन्होंने जब कंपास की ओर देखा तो बता रहे कि कंपास अपने आप चारों तरफ मूव कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स द वर्क ऑफ द कंपास इज डेड। उसके अलावा उनके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उस एरोप्लेन में वो सारे के सारे अचानक खराब हो गए। अब वो जब उनका इंस्ट्रूमेंट, उनका कंपास काम करना बंद कर दिया, देन आफ्टर ही ट्राइड द रेडियो, कि शायद उस रेडियो का यूज करके वो किसी से हेल्प ले सके। लेकिन क्या रेडियो से कंट्रोल कर पाते हैं? पैरिस कंट्रोल को अब फिर से फोन करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, ही रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, देयर वाज नो आंसर। जब उन्होंने पैरिस कंट्रोल को रेडियो से कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो वहाँ उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। देन आफ्टर द रेडियो वाज डेड, अब उनको लगा कि जो रेडियो है वो भी खराब हो चुका है। I had no radio, no compass and I could not see where I was। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास ना रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था और ना ही मुझे कुछ दिख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। वो हेल्पलेस महसूस करने लगे। I was lost in the storm and then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane। अब ये कह रहे हैं कि जब वो अपने आप को स्टॉर्म में गुम हो गए, अपने आप को वो स्टॉर्म में गुम हुआ पा रहे हैं, तभी उन्होंने देखा कि उस काले बादलों के बीच उनके पास आसपास अनदर एरोप्लेन दिखा उनको, एक दूसरा एरोप्लेन उनको दिख गया। एंड इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब ये जो पायलट है वो कह रहे हैं कि जो प्लेन मेरे आगे उड़ रहा था उसके विंग्स में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। विंग्स मतलब एरोप्लेन में जो इस तरह का विंग होता है उसमें लाइट भी जलता रहता है। अब ये पायलट करें कि उस विंग में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, लेकिन मैं इतना देख पा रहा हूँ कि वो जो एरोप्लेन है वो मेरे आगे आगे उस काले से आंधी में चल रहा है। एंड आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी, आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। तभी उन्होंने देखा कि मैंने उस पायलट में उस एरोप्लेन में जो पायलट था उसका चेहरा मुझे दिखा जो मेरी तरफ था। अब उसका चेहरा देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे साथ इस ब्लैक स्टॉर्म में अनदर व्यक्ति भी है। He lifted one hand and waved। जो अभी जो प्लेन आया था उसका पायलट अपने हाथ को हिलाते हुए पहले वाले पायलट को कुछ इशारा करता है। क्या इशारा करेगा देखते हैं। अब ये दूसरा वाला जो पायलट है अपने हाथ को हिलाकर इशारा करता है पहले वाले पायलट और कहता है इशारे में कि वो उसे फॉलो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब उसके इशारे को देखकर पहले वाले पायलट को लगा कि वो मुझे शायद इशारों में कह रहा है कि वो मेरे पीछे पीछे आए। देन आफ्टर ही नोज दैट आई एम लॉस्ट एंड आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब ये पहले वाले पायलट कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उसे मालूम है कि मैं खो चुका हूँ इस स्टॉर्मी आंधी में और इसीलिए वो मेरी मदद करने आया है, मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota and so that it would be easier for me to follow। अब उन्होंने क्या किया, अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ा लिया। डकोटा नामक एरोप्लेन के नॉर्थ डायरेक्शन में धीरे धीरे मुड़ा लिया। अब उनके लिए आसानी हो गई कि उस नए वाले जो एरोप्लेन थे उसको आसानी से फॉलो कर सके, उनके आसानी से उनके पीछे पीछे जा सके। It was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। अब कह रहे हैं पहले वाले पायलट वो बहुत खुश हुए उस दूसरे वाले एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना उनके लिए बताया जा रहा है कि एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसा, जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड किसी बात को बहुत आसानी से फॉलो कर लेता है, वैसे ही आप ये पहले वाले
पहले वाले पायलट दूसरे वाले प्लेन को एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसा उसके पीछे पीछे जाने लगे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। कह रहे कि आधे घंटे बाद तक वो अजनबी सा ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे आगे चल रहा था, लेकिन अचानक क्या होगा? Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. तभी उन्होंने देखा कि उनके पास जो एनफ फ्यूल है डेकोटाज नामक एरोप्लेन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्यूल से 5 से 10 मिनट और फ्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता। And then I was starting to feel frightened again, but then it started to go down and I followed through the storm. अब कह रहे हैं कि जब मैंने अब फ्यूल की उनको चिंता होने लगी और उस चिंता से वो डरने भी लगे, फिर भी वो आगे की ओर बढ़ते रहे एंड देन ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन। नीचे की ओर जैसे जैसे वो जा रहा था, उसके पीछे पीछे पहले वाला पायलट उसके नीचे नीचे जा रहा था। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight line of the light in front of me. अचानक से पहले वाले राइडर जो उस स्टॉर्म में गुम हो गए थे, वो क्लाउड से बाहर आ गए, अपने आप को क्लाउड से बाहर पाया, और जब बाहर पाया तो अब उन्हें सामने सब कुछ दिख रहा था, और उस दिखने में क्या दिखा उनको? 2 लंबे स्ट्रेट लाइन जिस पे बहुत सारे लाइट जल रहे थे। मतलब अब उन्हें लैंड करने के लिए एक एयरपोर्ट सामने दिख गया था, जिस पे वो बहुत आसानी से लैंड कर सकते थे। इट वॉज अ रनवे, उन्होंने कहा इट वॉज अ रनवे वेयर ही यूज्ड टू लैंड ओवर देयर, एन एयरपोर्ट देयर वर एंड आई वॉज सेफ। अब उन्हें लगने लगा कि मैं अब सुरक्षित हूँ। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone, and I could not see it anywhere. जब इतना सोचने के बाद वो अपने पीछे की ओर, आगे की ओर, चारों तरफ जब देखा, तो उनका जो दोस्त था जो ब्लैक एरोप्लेन में, वो उन्हें पूरे आकाश में कहीं भी नहीं दिखा। आकाश खाली खाली नजर आ रहा था, but there was no any aeroplane in the sky. अभी थोड़ा देर पहले उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल ब्लैक एरोप्लेन दिखा रहा, लेकिन अब उन्हें ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिख रहा है, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। अब वो कह रहे हैं कि द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो चला गया, एंड आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उन्होंने उसे कहीं भी नहीं देखा। Then the pilot landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तब उन्होंने क्या किया? अपने प्लेन को लैंड किया, and then he walked to the runway. क्या किया? डेकोटा के नियर जो कंट्रोल टावर था, वहाँ कंट्रोल टावर मीन्स अ प्लेस वेयर a pilot or an experienced people can ask his question about the flight. वो वहाँ गए और उससे कुछ पूछा। फिर आस और मन, वहाँ एक औरत बैठी थी, उससे उन्होंने क्वेश्चन किया कि आई वॉज एंड हू द अदर पायलट। जब मैं आकाश में उड़ रहा था तो मेरे साथ साथ एक दूसरा पायलट भी था, वो कहाँ गया, वो कौन था? आई वॉन्टेड टू से हिम थैंक यू। अब ये पायलट, पहले वाले पायलट दूसरे वाले पायलट को थैंक यू बोलना चाहते हैं। She looked at me very strangely and then laughed. वो जो वुमेन वहाँ बैठी थी कंट्रोल रूम में, उन्होंने
उससे पर हंसा, स्ट्रेंजली हंसा, बहुत अजीब तरीके से उस पर हंसा, और फिर अजीब तरीके से उसके ऊपर देखा और फिर वो हंसने लगे। द अनदर एरोप्लेन, उस औरत ने पूछा, इस औरत ने ये क्वेश्चन पूछा कि अनदर प्लेन, क्वेश्चन क्या, किस तरह का है अनदर प्लेन? अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस घनी इस आंधी तूफान में दूसरा एरोप्लेन तो मुझे दिखा नहीं। नो, द अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन एंड आई कुड सी ऑन द रडार। अब वो जो औरत वहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आंधी तूफान वाली रात में आपके अलावा कोई भी अदर प्लेन आज रात उड़ान नहीं भरी है। ओनली योर्स वाज द ओनली वन, मतलब आप ही का जो प्लेन था वही एक था, उसके अलावा दूसरा कोई भी प्लेन आज उड़ान नहीं भरी है। बस आप ही का प्लेन उस रडार में, उस लाइन में, उस पाथ पे दिख रहा है। सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel my tanks। अब ये जो राइटर है, जो पायलट है, वो सोचने लगे कि किसने मेरी मदद की, यहाँ तक मुझे सुरक्षित पूर्वक बिना कंपस, बिना रेडियो और बिना फ्यूल का मुझे यहाँ तक बहुत आसानी से, बहुत सुरक्षित पहुँचा गया, वो आखिर था कौन? Who was the pilot on the strange black aeroplane and flying in the storm without lights? अब ये पूछ रहे हैं कि वो कौन पायलट था? कौन पायलट था? अजनबी सा पायलट एरोप्लेन में, ब्लैक एरोप्लेन में, जो उस आंधी में उड़ा बिना लाइट का, बिना लाइट का हो गया और मेरी बहुत मदद की। उन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, उस पहले वाले पायलट को कोई भी आंसर नहीं मिला, एंड दैट इज वाई उन्होंने स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का नाम दिया उसको। एंड शायद इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है द ब्लैक एरोप्लेन, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, दैट वाज वेरी मिस्टीरियस फॉर द फर्स्ट पायलट। उनको आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन था जो उन्हें उस आंधी तूफान में मदद की। That is the story. Story is finished over here. In the next class, I will send you the question answer from this related lesson. और मुझे उम्मीद है कि जब तक आपके पास इसका मटेरियल, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं पहुंचता है, तब तक आपको क्या करना चाहिए, आपके बुक में जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसका आंसर खुद से ट्राई करना चाहिए, लिखने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो आप आंसर उसका बना सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द टेस्ट। आई विल टेक रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? आई विल टेक, मतलब ये जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं रिस्क लूँगा। अब वो कैसा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब वो उस स्टॉर्मी क्लाउड के बीच से जाने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। मैंने तो सारा पढ़ा दिया, आपको उसको अपने वर्ड में आंसर करना। आई होप यू विल डू एज आई वॉन्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।